Good morning, students. The topic that we are going to see today is coordination, the essence of management. That is the last topic of your first chapter. So first, let us try to understand what do you mean by coordination. Now, in our previous classes, we have seen that management is nothing but a series of interrelated activities, or it has to perform different functions. Like we have seen about management, what is a management? So it is a interrelated activities like planning, directing, controlling, staffing. ठीक है. सो इन सारे एक्टिविटीज को आपको इंटररिलेट करना होता है. दैट इज दी मैनेजमेंट. नाउ in order to interrelate these activities, you need to coordinate all the activities because we have seen that all the functions or activities are interdependent upon each other. जैसे for example, production manager, if they are in requirement of more amount of raw material, it will be able to get the raw material only with finance departments provide them adequate finance. ठीक है. Similarly, what is the availability of raw material? That is dependent upon the sales department. जैसे जैसे sales होगा उसके हिसाब से they will come to know कि how many products are required in order to produce that product, what will be the amount of raw material required. Similarly, raw material या अगर आपको production करना है, you will be in requirement of more and more amount of workers or qualified laborers. ठीक है. तो इसके लिए again there should be a proper interdependence upon each and every functions of management. तो ये जो फंक्शंस को आप इंटीग्रेट करते हो या you try to find out the interdependence upon all the activities, that is termed as coordination. So in simple tense, what do you understand by coordination? The process by which manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination. तो ये जो प्रोसेस होता है सारी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करने का या एक साथ लेके आने का, ताकि आपका जो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल है दैट यू आर एबल टू अचीव, इट इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन. So what is the requirement of coordination for achieving the harmony among individual efforts? So in simple terms, coordination is nothing but it is the force that will bind all the other functions of management being performed in various departments to provide continuity in working of organization. जैसे coordination क्या एक simple धागे का काम करता है जो सारे functions of management को एक साथ एक जगह पे लेकर आकर कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करता है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो अचीव हो सके. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट तभी काम करेगा जब हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो. ठीक है. नाउ दिस कोऑर्डिनेशन इट इज नॉट रिक्वायर ओनली इन मैनेजमेंट, इवन इन स्कूल्स यू कैन सी. जैसे अगर आपका कोई टेस्ट रखना है, 1 से 5 सब्जेक्ट्स का टेस्ट रखना है, तो कौन कौन सा सिलेबस होगा वो इंडिविजुअल टीचर आपको ऐसे नहीं करेगी, ऐसे ही डिसाइड नहीं करती. फर्स्ट सिंक्रोनाइजेशन इज बीन कंडक्टेड बिटवीन डिफरेंट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि आप कितने चैप्टर्स रखोगे, आप कितने चैप्टर्स रखोगे. अल्टीमेटली ये सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों है? ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी पढ़ाई का बर्डन नहीं है. सो मैनेज कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव ओवरऑल. ऐसे जरूरी नहीं कि वो सिर्फ बिजनेस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, इवन स्कूल्स या अदर एक्टिविटीज जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, देयर ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. So let us try to understand simple coordination with the help of an example. जैसे for example, purchase department is there. It will seek information from the sales department so as to understand कि what is to be purchased. या sales department will keep on informing the production department about the orders to be executed so that the production can be planned. Now this department, both the department, they will inform the finance department about their financial requirement, because production department को पैसों की क्यों जरूरत पड़ेगी? ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके. सिमिलरली सेल्स डिपार्टमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज है या सेल्समैन के जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वगैरह वगैरह, वो सारे चीजों के लिए भी उनको पैसे चाहिए. सो दे विल बी इन्फॉर्मिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू दी फाइनेंस डिपार्टमेंट. नाउ दी फाइनेंस डिपार्टमेंट विल मेक श्योर कि वेदर बिजनेस के पास इतने सफिशिएंट फंड है या नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर इन्होंने सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसे दे दिए तो आगे चल के उनको फाइनेंशियल बाकी डिसीजंस में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होने चाहिए. तो ये जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है हर डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि देयर शुड बी स्मूथ फंक्शनिंग, इट इज नथिंग बट दैट इज अ coordination. So coordination is the essence of management. The process of this coordination, it begins at the planning stage and it will continue till the organizational objectives are achieved. ऐसा नहीं है कि हर कोई ऑर्गेनाइजिंग के बाद या डायरेक्टिंग के बाद आपका कोऑर्डिनेशन शुरू होता है. Since you start planning the activity, the coordination work starts from right at the planning stage. और वो कब खत्म होगा? जब अल्टीमेटली आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाता है, आपका टारगेट अचीव हो जाता है, द कोऑर्डिनेशन वर्क विल एंड ओवर देयर. सो द कोऑर्डिनेशन इज अ ऑनगोइंग एंड अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी. Here the coordination, its main work is to bring all the resources and efforts of individual together so that all the activities are conducted in a smooth manner and your planned objectives are achieved with minimum conflicts. So this coordination is required in all the functions of management.
जैसे किस तरह से कोऑर्डिनेशन रिक्वायर है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एट ऑल दी स्टेज. जैसे फॉर एग्जांपल प्लानिंग स्टेज है, तो प्लानिंग स्टेज में कोऑर्डिनेशन विल हाउ इट विल वर्क. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ओनली. जैसे प्लानिंग में क्या होगा कि प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट दे नीड टू कोऑर्डिनेट ईच अदर सो दैट दे आर एबल टू मीट द मार्केट डिमांड. तो प्लानिंग में यहाँ पे ये दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा. देन कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजिंग मीन्स व्हाट की अभी आपको डिमांड इतनी मार्केट डिमांड मीट करनी है, तो इसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल्स अरेंज करने पड़ेंगे टाइम पे. एंड दे विल हैव टू इन्फॉर्म दी सेल्स डिपार्टमेंट कि उनका प्रोडक्शन डिले तो नहीं होगा, या प्रोडक्शन साइकिल वो उनकी डिमांड मीट करने के लिए उनकी प्रोडक्शन साइकिल क्या होगी. सो अगेन हियर कोऑर्डिनेशन इन बोथ द डिपार्टमेंट्स विल बी देयर. देन कोऑर्डिनेशन इन स्टाफिंग. स्टाफिंग में कैसे होगा, तो हियर दी एचआर मैनेजर, दी एचआर डिपार्टमेंट विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद द प्रोडक्शन मैनेजर टू सी कि व्हाट क्वालिटी ऑफ पर्सनल विल बी रिक्वायर्ड. सो दैट विल बी वर्क ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे अगेन एचआर डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में स्टाफिंग के रिलेटेड कोऑर्डिनेशन आ जाएगा. देन डायरेक्टिंग में किस तरह से काम आएगा, सो प्रोडक्शन मैनेजर दे विल कोऑर्डिनेट विद द लाइन मैनेजर्स अबाउट द मंथली टारगेट्स एंड देन लाइन मैनेजर विल इंस्ट्रक्ट द सेम टू द सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे इंटर रिलेटेड इंटर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन आ जाएगा. एंड फाइनल इज द कंट्रोलिंग. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सपोज दे हैव प्लान की आउटपुट 1000 यूनिट्स का होना चाहिए, हाउएवर the actual output is only 920 units. So here the production department they will try to understand the reason कि जो उन्होंने output plan किया था वो output वो attend क्यों नहीं कर सके. So here they will have to coordinate with the again purchase department to check the quality of raw materials कि क्या wastage of quality के वजह से तो हमारा ये target achieve नहीं हुआ है. तो इस तरह से coordination is required in all the stages or all the functions of management. So what is the characteristics of coordination? The very first characteristics is it integrate group efforts. We have already seen that coordination it provides a common focus to all the people who are working in the organization is independent or group में. ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, it unifies the diverse tasks which are performed towards the common goal or objectives. Then coordination it ensures unity of action. It ensures it means that it ensures unity of actions among all the department. We have seen that organization is dependent upon the organization is divided into different departments and each department have its own individual departmental goals. तो यहाँ पे coordination का काम क्या है कि they need to ये चीज देखता है कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है. So here this not only binds all the department but also ensure that focus of जो भी वो action करता है it is directed towards the achievement of organizational goal only. So it ensures unity of action. जो भी काम करो वो total unity में करे. Then it is a continuous process as we have seen कि it is an ongoing process. सिर्फ एक stage पे ही आके काम नहीं होता, right? It starts from planning stage and it ends at where the targets are being achieved. So coordination is an ongoing process. It doesn't stops. Then coordination is all pervasive function. It means each department they perform activities to achieve their individual goals, but all the activities need to be integrated so that ultimately organizational goals जो आपने plan किया है वो आप achieve कर सको. ठीक है, so it is a all pervasive function. That is for example production department का main aim क्या रहेगा, to maximize its production capacity at minimum cost, but it has to कोऑर्डिनेट विद द सेल्स डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टू एंश्योर कि इतना एडिक्वेट फंड्स उनके पास अवेलेबल है ताकि वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सके. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मेड एक्सेप्टेबल एंड सफिशिएंट डिमांड कैन बी क्रिएटेड फॉर द प्रोडक्ट इन द market. So it is all pervasive. It is not limited only to production department or it is not limited only to sales department. It is available. It is required in all the functions of management. Then coordination is responsibility of all manager. सिर्फ फाइनेंस मैनेजर का कोऑर्डिनेट करने का काम नहीं है या सिर्फ एचआर मैनेजर का कोऑर्डिनेट करने का उसके डिपार्टमेंट का काम नहीं है. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन की, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, वेदर ही इज अ सेल्स मैनेजर, वेदर ही इज अ फाइनेंस मैनेजर या वेदर ही इज अ लीगल मैनेजर. हर मैनेजर को कोऑर्डिनेट करके कोई भी काम करना है. And last, it is a deliberate function. That is, a manager he has to coordinate the efforts of different people in a conscious and a deliberate manner. It coordination का काम क्या है? It provides a positive directions to the efforts of individuals so that they can work as a group. An organization will be able to work in a cooperation and good spirit, but without coordination, even well motivated efforts will go waste. तो यहाँ पे काम क्या है? Deliberate function का मतलब क्या है? एक अंदर से आपको भावना जागनी चाहिए कि yes, we are working for the organizational goal and all your efforts should be directed towards achievement of that goal only. So in this sense, coordination is not just function of management, but it is the essence of
मैनेजमेंट. तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, like planning or directing, it is not only the function but it is the requirement, actually requirement of the management. So now what is the importance of coordination? Again all the characteristics में ही ये points already we have covered, but still we'll have a look what is the importance of coordination. So the very first importance of coordination is growth in size. इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे organization की size बढ़ेगी, the requirement of people will also increase. Now these people, they are individual, they differ in their work habits, they differ in their backgrounds, they differ in their approach towards the situation, relationship with each other. ठीक है, so it becomes very difficult for the organization to ensure that all the individual work towards the common goal, because हर एक individual का भी अपना अपना goal होगा और organization तभी success हो पाएगी when this individual goal is integrated into group goal or organizational goal. So हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाए. सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, इट इज वेरी मच रिक्वायर कि जो भी इंडिविजुअल गोल्स है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो हार्मोनाइज हो सके विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. नाउ अगेन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट का अपना अपना गोल होता है. जैसे वी हैव ऑलरेडी सीन की मार्केटिंग डिपार्टमेंट का गोल क्या है, जितना प्रोडक्ट हो सके वो उतना प्रोडक्ट बेचे. ठीक है, लेकिन वो उतना एडवर्टाइज करने के लिए लाइक उनको हैवी डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो उनका गोल है कि डिस्काउंट देके भी वो अपने प्रोडक्ट को बेचे. बट ये डिस्काउंट देना ना देना, अगेन फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है कि दे मे नॉट अग्री, बिकॉज जितना ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा. तो इससे क्या होगा, डिपार्टमेंटल गोल्स, अलग अलग डिपार्टमेंटल गोल्स की वजह से भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है, सो बिकॉज ऑल दी हाउएवर, सो इट हैज टू बी रिमाइंड कि ऑल जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स है दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे हैव टू डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर इन्फॉर्मेशन सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. सो ये जो एक्टिविटी है ये कब अचीव हो सकता है, ओनली व्हेन दी लिंकेज बिटवीन दी एक्टिविटीज इज, अगर प्रॉपर लिंकेज बिटवीन एक्टिविटीज होगा तो ही आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेंगे. सो अगेन हियर दी कोऑर्डिनेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज दी स्पेशलाइजेशन. नाउ जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न होती जाएगी, दे विल बी इन रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एंड मोर स्पेशलिस्ट. अब ये स्पेशलिस्ट यूजुअली उनके दिमाग में क्या होता है कि दे आर दी क्वालिफाइड पर्सन, कि जो भी उनका प्रोफेशनल क्राइटेरिया उनके हिसाब से वो डिसीजंस ले, वो कभी भी दूसरे लोगों का इंटरफियरेंस उनके डिसीजंस में नहीं चाहेंगे. दे आर नेवर रेडी टू टेक एनी एडवाइस और सजेशंस फ्रॉम दी डिफरेंट पीपल. तो इसके वजह से क्या होगा, अगेन इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट. सो इन सम कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट दिस इंडिपेंडेंट पर्सन दे आर एबल टू एडजस्ट विद दी डिफरेंसेस इन अप्रोचेस, इंटरेस्ट और ओपिनियंस ऑफ दी स्पेशलिस्ट. So that's all. So with this I am completing with the chapter. I am giving you 1 day time. Just refer to all 3 videos, all the 7 topics that we have covered. If you are having any doubt, feel free to get your doubts clear by messaging me on my personal window. Thank you.